کہ گر کر بھی سنبھلنا جانتی ہے. میری آواز سے آواز ملانا اگر سچی بات کر رہا ہوں تو. یہ گر کر بھی سنبھلنا جانتی ہے, ہوا کا رخ بدلنا جانتی ہے, اور ترے پھنکارنے سے کچھ نہ ہوگا. یہ سانپوں کو کچلنا جانتی ہے, یہ سانپوں کو کچلنا جانتی ہے. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. اس عزم کے ساتھ کہ ہم مالیگاؤں شہر میں انقلاب لانے کی کوشش کریں گے. 1999 کے بعد سے آج تک مالیگاؤں شہر اپنی بنیادی سہولت کے لیے ترس رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو دیکھ رہی ہوں, سماجی گراوٹ کا ہونا بہت دکھ کی بات ہے. میں ابھی یہ نظم سن رہی تھی, میں صاحب کی بیٹی, میں نے دیکھا یہاں موجود وہ پرانے ساتھی جو نہال احمد صاحب کے ساتھی رہے, ان کے ساتھ یوسف بابا صاحب بھی تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, وہ بیٹھ گئے. میں نے بولا کہ ان کو بیٹھا جاؤ. یہ بیٹی لفظ یہ اتنا مقدس ہے, اتنا پیارا ہے کہ میرے خیال سے ہر کوئی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اور اس کی بیٹی لفظ کی عزت یہ مالیگاؤں ہی نہیں پوری دنیا پورا عالم کرتا ہے. میں وہی بیٹی ہوں. اس اسٹیج سے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے مخالف میں جو دو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ حافظ ہو, اللہ کے واسطے اپنے اسٹیج سے کسی کی بیٹی, کسی کے ایریا کا نام لے کے, محلے کا نام لے کے تم لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی بیٹی کی عزت مت خراب کرو. میں محسوس کر رہی ہوں مدعے سے بات ہٹا کر مسلسل کوئی کسی عورت کا نام لے کے, کبھی کوئی کسی علاقے کا نام لے کے ذلیل کرتا ہے عورت ذات کو. تو یاد رکھو یہ عورت ذات وہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتے ہیں تو یہی عورتوں کی مجلس بیٹھا کر ان سے دوائیں کروائی جاتی ہے. لیکن تمہارے اسٹیج سے تم عورت کا نام لیتے ہو, عورت ذات کو, کسی کی بیٹی کو تم ذلیل کرتے ہو, کسی پر الزام لگاتے ہو صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے, سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. تو اگر تم کو مالیگاؤں شہر کے لوگوں سے ووٹ لینا ہے تو تم اپنے مدعے پر بات کرو. یہ بتاؤ کہ 15 سال میں شیخ آصف اور شیخ رشید خاندان نے مالیگاؤں میں کیا کارنامے کیے جس سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دوبارہ تمہارے درمیان ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ 10 سالوں میں مفتی اسماعیل صاحب نے ایسا کیا کام کر دیا جس کی وجہ سے دوبارہ مالیگاؤں شہر کی عوام نے, مالیگاؤں شہر کے لوگوں نے, عورتوں نے ان کو ووٹ دینا چاہیے. میں مالیگاؤں شہر کی عوام کو یہ جگانے کے لیے یہاں کھڑی ہوئی ہوں کہ جو سیاست یہاں ہو رہی ہے, ہرے جھنڈوں کی سیاست, وہ ایک طرف 1 لاکھ شندے کا بھگوا جھنڈا لے کر کھڑی ہے تو دوسری طرف اجیت پوار کا بھگوا جھنڈا لے کر کھڑی ہے. نہ ان کے اوپر کوئی ایم ہے, نہ دلی میں ان کا کوئی اتنا بڑا رتبے دار اور تعداد میں ایم پی ہے جو تمہارے تحفظ کے لیے یہاں سے لے کر دلی تک تمہارے حفاظت کے لیے بولے, اعلان میں بولے. میں جس پارٹی سے امیدواری کر رہی ہوں وہ پارٹی ہے جس نے یو پی میں بی جے پی کے راستے روک دیے اور یہ حالت کر دی اپنی 37 سیٹ لا کر کہ جو مضبوط ہندوتو والی حکومت, ہندو راج ہندوستان میں بی جے پی والے بنانے والے تھے, اس رام مندر کے نام سے جہاں بابری مسجد شہید ہوئی, اور وہاں پر انہوں نے بنا کے پورے ہندوستان کو یہ بتایا, پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم ہندوستان میں ہندوتو کا راج لانے والے. وہاں سماجوادی لوگوں نے ایودھیا ہرا کر
उनको ये बता दिया कि हिंदुस्तान जमहूरी तर्ज पर चलता है। मैं उस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी कर रही हूँ। मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मालेगांव शहर में अमन कायम रखने में और मालेगांव शहर के लोगों का, खास तौर पर मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोगों का दबदबा कायम करने के लिए गणपति के पास जो डेकोरेशन की दीवार बनाई गई थी, सिर्फ इस तर्ज पर कि ताजिया जाता है तो उसका रास्ता रोक लिया जाए, तो साथी निहाल अहमद साहब ने, वो साथी निहाल अहमद जो मौलवी मोहम्मद उस्मान के बेटे थे, उन्होंने ताजिए को ले जाने के लिए अपने कांधे पर दीवार को, जो गणपति की डेकोरेशन की दीवार थी, उसको तोड़ दिया और ये बताया कि ये मुल्क, ये शहर, ये चलता है जमहूरियत से। जहां तुमको गणपति को सजाने का जरूरी हक है, वहीं हमको ताजिया ले जाने का भी हक है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत की बात हो, मजहब के नाम पर अगर बात होगी तो याद रखो, जो लोग रोजाना यहाँ से सफर करते हैं, जो नदी के पार अपने बीमार लोगों को लेकर जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं, नासिक जाते हैं, बम्बई जाते हैं, यहाँ की औरतें भी बस से जाती है, बाहर कराने जो रोजाना वापस आती है, वो महफूज वापस आए। मालेगांव शहर में जो सियासत चल रही है, कहीं अपने आप को अच्छा बताने के लिए नाकारा काम हो रहा है, कहीं मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे का ऐसा कारोबार, ऐसा जाल फैल गया है कि अगर मालेगांव शहर के लोगों ने इस नशे के जाल को खत्म नहीं किया तो तुम समझ लो कि मालेगांव शहर की जो औरतें, बच्चियां यहाँ हैं, हिफाजत से हैं, वो अपने घर में निकलेगी तो वो नशा करने वालों और ऐसे कारोबार करने वालों से हिफाजत से वापस आएगी क्या? ये सबसे बड़ा तुम्हारा सवाल है। और खास तौर पर ये याद रखो कि हमारी बच्चियां कहीं अगवा न हो, किसी रिक्शा में न लेकर जाए, इसलिए ध्यान रखो जो अपने पहलू बदल के, निशान बदल के इस शहर को, इस नस्ल को खराब कर रहे हैं, उनका सर कुचलने का वक्त जो है वो है हमारा इलेक्शन जरूरी हक। मैं मालेगांव शहर से उम्मीदवारी कर रही हूँ असेंबली में। कोई 50 साल के बाद कोई खातून असेंबली में उम्मीदवारी कर रही है जो दावेदार है जीतने की। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो यकीनन जिस तरह मालेगांव शहर में गुंडागर्दी फैल रही है उसको मैं जमहूरी अंदाज में खत्म करवाऊंगी। जो लोग नशे में मुलविस हैं वो हमारे समाज का हिस्सा है। जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको हम बेहतर कारोबार देंगे, हलाल कारोबार देंगे, कानूनी तौर पे कारोबार देंगे तो वो ये गैर कानूनी काम छोड़कर वो कारोबार करेंगे, उनके घर का रोजगार चलेगा। और जो बच्चे, जो नौजवान इस नशे की नस्ल में बर्बाद हो रहे हैं, नशे के शौक में बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए रिहैब सेंटर बनाएंगे। देख लो, ये रिहैब सेंटर एक नौजवान आदमी की अकेले सुधारने के लिए नहीं, उसकी बीवी की जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी, उसकी गली महल्ले और सबके तहफ्फुज के लिए और इस शहर की औरतों के तहफ्फुज के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के सामने एक्शन की तस्वीर के लिए खड़ी हुई हूँ, जहां मैं ये महसूस कर रही हूँ 2 रोज पहले मैं कब्रिस्तान वाली रोड से नौरंग कॉलोनी जा रही थी, ऑफिस का उद्घाटन था। जब मैं वापस आई वहां ट्रैफिक जाम हुई कब्रिस्तान से पहले, वहां मैं खड़ी थी, कुछ नौजवान, हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो नौजवान भी देखने लगे। मैं उनको बोलने लगी मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, मेरा निशान साइकिल है और मालेगांव शहर में तरक्की के लिए आप मेरा साथ दो। तो वो लोगों ने मुझे कहा, नौजवानों ने, कि मैडम हम जिस रोड पे खड़े हैं ना, यहाँ से रोजाना मैयत जाती है। जो शहर का हाल है, जिंदा तो जिंदा, यहाँ मुर्दा भी चैन से कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाता, ये हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप हमको ये वोट की अपील मत करो, हमने खुद ये तय कर लिया है कि मालेगांव शहर में जब जनाजा जा रहा है बड़ी कब्रिस्तान में, बारिश की
बारिश होती है, कीचड़ जमा होता है, उस वक्त ये नहीं समझता जनाजा ले जाने वालों को कि हम पानी रख रहे हैं, पानी में पैर रख रहे हैं तो वहां गड़ा है कि सिर्फ पानी है। मैयत डोल जाती है, खिल जाती है, तो सोचो जिस घर की मैयत होती है, जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसकी माँ, वो उनकी क्या हालत होती होगी कि कहीं मैयत गिर ना जाए। ये नौबत मालेगांव शहर में आ गई है। बहुत जरूरी है कि हम लोग इस तकलीफ को समझे। जहां लोग हरे लड्डू से तोले गए, वही रोड की ये हालत है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मालेगांव शहर हमेशा से अमन पसंद शहर रहा है और मालेगांव के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि जब कोविड का मामला आया, कोरोना का मामला, तो पूरे हिंदुस्तान में ये हाल था कि कोई अपना भी मर जाता था ना, तो उनके लोग छूते नहीं थे, ना बेटा छूता था, ना बाप छूता था, ऐसे हाल थे। लेकिन ये शहर में मालेगांव के लोगों ने बिना जात पात के उन बीमारों को इलाज करने का मौका दिया रही। यहाँ तक के जो अंतिम संस्कार होता है हिंदू मजहब के हिसाब से, उसमें उनके घर के लोग नहीं आए, लेकिन शमशान में हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवानों ने जाकर उनको आखिरी रस्मात अदा की, क्योंकि हम जिंदे के साथ साथ मुर्दे का भी एहतराम जानते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल इस बात की है, बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ जब जनाजा जाता है तो उसका एहतराम, उसका तकद्दुस कायम रहे, ये एक सवाल होता है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि इलेक्शन मुद्दों पे होना चाहिए, ऐसा कि ये तुम क्या करके आए हो इतने सालों में, ये बताओ। 10 साल तुम रहे, 15 साल दूसरे लोग रहे, वो किस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ये बताओ। मैं आप लोगों के सामने वो बातें बताने आई हूँ जिस बिना पर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। सबसे पहले तो मालेगांव शहर में जो तालीमी निजाम सबसे खराब है, सबसे खराब इसलिए है कि जो हमारी प्राइमरी स्कूलें हैं उसको नशे, सट्टे और जुए का अड्डा बना दिया गया है। पूरी धीरे धीरे हमारी स्कूलें तोड़ दी गई, वरना चंद साल पहले वहीं से डॉक्टर वकील पढ़कर जाते थे प्राइमरी स्कूल से, उसके निजाम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसकी वजह यह है, मैं जो महसूस करती हूँ कि उस जगह को ये अपने नशा रखने का गोडाउन बनाते हैं और पुलिस जो है वो वहां नहीं जा पाती क्योंकि वो सरकारी जगह होती है, इसलिए उसको नशे का अड्डा बना दिया गया। सबसे पहले ये नशे के अड्डे जो कारपोरेशन की जगह है जिसपे लोग कानूनी तौर पे कब्जा करके रखे हैं, उसको स्कूल द्वारा पायदार बनवा के, ताकि गरीब के बच्चे भी तालीम हासिल कर पाए। आज लोग बच्चे इसलिए तालीम गरीब की नहीं हासिल कर पाते कि महंगी स्कूल का डोनेशन नहीं है। प्राइमरी स्कूल का भी ये निजाम हो जाए जिस तरह रईस शेख ने बनाया है कि गरीब का बच्चा भी, जो हमारे यहाँ आज पहली से 7वीं तक का निजाम है, उस निजाम को 10वीं तक का करवा दें की कोशिश मैं करूंगी, ये आपसे मैं वादा करती हूँ। मैं इलाकों में घूम रही हूँ, देख रही हूँ मामूली पैसे पे औरतें घर में रोजगार करती हैं, कहीं गोंद चुनती है, कहीं इमली फोड़ती है, कहीं नक काटती है, तो कहीं टोपी बनाने का काम करती हैं। और बहुत सारे इलाकों में तो लोग औरतें प्याज छीलने के लिए भी मार्केट में जाती हैं। आप ये समझ लो, बहुत मामूली पैसे पे वो रोजगार करती हैं। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ, खास तौर पे वो खवातीन जो मेरी आवाज सुन रही है अपने घरों में, कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक आपको घर बैठे रोजगार मिले, ऐसा रोजगार जिसमें मेहनत के हिसाब से आपको पैसा मिले ताकि आप इज्जत से अपने घर में बच्चों की कफालत कर पाए, ये कोशिश मैं करूंगी। मालेगांव शहर में बस्तियां बसाना और बचाना ये सिर्फ निहाली और सोशलिस्ट लोगों ने किया है। मैं देख रही हूँ मेरे सामने वो पुराने लोग बैठे हैं जो मालेगांव शहर की बस्तियां बसाने में बड़ा किरदार अदा किए थे। निहाल साहब के बाद आज तक किसी ने एक बस्ती नहीं बसाई। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ, चाहे वो बस्ती बसी हुई हो या जो ओपन जो जगह है जहां लेआउट की खेती नहीं है, हुकूमत की तरफ से लोगों को अपना घर
घर का मालिक बनवा के, 7 बारे का उतारे का मालिक बनवा के तहफ्फुज़ से रहे, ताकि कोई 2 कौड़ी का एमएलए बीजेपी का आकर यहाँ ये न बोले कि यहाँ लैंड जिहाद होता है और हमारे घर पर बुलडोजर न चल जाए। इसके लिए आपके 7 बारे का उतारे का आप मालिक बने, ये मैं कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में आज मैं देखती हूँ कि कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं और अपने खानदान की कफालत करते हैं। मामूली से मजदूर रहने के बाद वो घर की कफालत करना, किराया देना और अपने बच्चों को तालीम देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हम कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट से लेके मुख्तस करके लोगों को हाई परचेज से जगह देंगे कि जो बेघर लोग हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनको घर का मालिक बना दिया जाए ताकि वो उनकी छत जो है वो मुस्तकिल हो जाए। और जो बेवा तलाकशुदा औरतें अकेले अपनी जिंदगी गुजारती हैं किराए के घर में, वो घर की मालकिन होकर अपनी बच्चियों को इज्जत से घर में रख पाए, ये कोशिश मैं करूंगी। आज आप देखते हैं परेशान है लोग, पीला कार्ड नहीं बनता। सादी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में 42,000 पीले कार्ड बनवाए। सादी निहाल अहमद साहब के बाद किसी एमएलए की ये ताकत नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर किसी मुफलिस, गरीब और मुस्तहिक का पीला कार्ड बनवा पाए। और उसके बरखिलाफ जो केसरी कार्ड पर लोगों को अनाज मिलता था, वो अनाज भी बंद हो गया। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ, जिस तरह दही इलाकों में केसरी कार्ड पर गेहूं, चावल, शक्कर, तेल वो मिलता है, वैसे ही साथी निहाल अहमद साहब के दौर में जिस तरह मिला करता था, उसको वापस बहाल करके मालेगांव शहर में जो एक जेरोक्स के काम आता है राशन कार्ड, उस पर अनाज मिले, केसरी कार्ड, ये कोशिश मैं करूंगी। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे नौजवान जो पावर लूम में कारोबार के अलावा दूसरा काम करना चाहते हैं, दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोजगार का मौका नहीं है। न यहाँ कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्री है। उन लोगों के लिए अखिलेश यादव से बोलकर, अखिलेश यादव ने उनके खुद के जिले सैफई जिले में 13 ऐसे प्रोजेक्ट डाले और पूरे यूपी में 632 प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसे डाले जहां पर जो लोग मजदूर थे इधर उधर जाते थे, कहीं बंबई में, कहीं दूसरी कलकत्ता में रोजगार करने के लिए, तो 632 प्रोजेक्ट उन्होंने डाले ताकि लोग जो है मजदूरी अपने शहर में करो। और याद रखो, तुम्हारे ही पास इतनी बड़ी ताकत है, जितनी बड़ी समाजवादियों की ताकत है वो तुम्हारे पास है। तुम्हारे सामने जो 2 नुमाइंदे हैं, एक तो आजाद हैं, पल्लू पकड़ के बैठे हैं अजीत पवार का, और दूसरे जो है वो शिंदे से मोहब्बत करते हैं, ये आप लोग जानते हो। सिर्फ अखिलेश यादव ही एक ऐसे लीडर हैं जो तुम्हारे शहर में प्रोजेक्ट लाने में मदद करेंगे, जो लोग बंबई में, पूना में, चलकरंजी में मजदूरी करने जाते और अपने घर में मैयत में वो नहीं आ पाते, रात भर मैयत उनके लिए रुकी रहती, वो दोबारा अपने शहर में इज्जत से रोजगार करो, कंपनी में मजदूरी करो, मैनेजरी करो। ऐसा मैं काम करूंगी, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में आप देखेंगे पानी का निजाम इतना खराब है कि दिन भर औरतें, जिस दिन नल आता है तो नल आता है 2 दिन के बाद। हमारा डैम खुद का होता हुआ आज दूसरे अपनी सियासी ताकत के लिए, मेयर बनने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच दिए। और आज जो मुफ्ती साहब के साथ स्टेज पे बैठे हैं इस्लामाबाद वाले, वो उसमें सूचक और अनुमोदक थे, दोनों इसमें शामिल है पानी बेचने में। तो आज मालेगांव शहर की औरतें दिन भर इस बात के लिए परेशान रहती है कि नल कब आएगा, क्योंकि वक्त फिक्स नहीं है। कहीं उनको शादी में जाना हो, मैयत में जाना हो, वो परेशान रहती। तो मालेगांव शहर में स्टोर की पानी की टांकी बनवा दी जाए तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और पानी का जो फोर्स लोगों के घर में काम आता है नलों में, वो सही हो जाएगा और एक टाइम फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से औरतों को पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये 2 दिन आ रहे और 3 दिन आ रहे की जो मुसीबत है वो स्टोर की टंकी की वजह से खत्म हो जाएगी। ये करने की मैं कोशिश करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ।
मालेगांव शहर की आवाम आज बहुत परेशान है। रोड, गटर, सड़क, आप देखेंगे हमको इसी चीजों में रोक के रखा गया है कि तालीमी निजाम हमारे यहाँ कोई कॉलेज, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। मैं देखती हूँ, मैं शिवाजी पुतले के पास से देखती हूँ, बड़ी तादाद में मालेगांव शहर के नौजवान और लड़कियां जानवर पढ़ने के लिए जाते हैं। आप समझ लो कि जो हरे झंडे की सियासत मालेगांव में हो रही है ना, ये जो लड़कियां जा रही है बसों से रोज पढ़ने के लिए, ये जो लड़के जा रहे हैं मुस्लिम, ये हरे झंडे की सियासत है। ये यूट्यूब पर अतराफ के लोग भी देखते हैं, सरपगल लोग भी देखते हैं जो यहाँ नारेबाजी होती है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सियासी फायदा उठाने के लिए जो तुम मजहबी बातें कर रहे हो, इसकी वजह से इन बच्चियों पर कोई इज्जत का हमला हो जाए, वो बच्चों पर जो लड़के जा रहे हैं उनके ऊपर कोई मॉब लिंचिंग हो जाए। ये जो लानत है सियासत में मजहब की, इसको खत्म करो। और जो मालेगांव शहर में अगर हम कॉलेज लेकर आ जाते हैं तो हमारी बच्चियां और बच्चों को दूर जाने की कोशिश, दूर जाने का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में फार्मेसी कॉलेज लाया और जो घर घर गली गली आज मेडिकल स्टोर है वो तोहफा साथी निहाल अहमद साहब का। इसी तरह मैं आपको वादा करती हूँ कि ऐसी कॉलेजेस जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो इज्जत से, हिफाजत से अपने शहर में पढ़ पाए, ये कोशिश मैं करूंगी। ये मेरे मंशूर में मालेगांव शहर में 12 नवंबर जैसे वाकयात होते हैं जहां हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ लोग जमा होते हैं और अपना एहतजाज जमहूरी तर्ज पर दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस, साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था सालों पहले कि पुलिस की गोली को आंख होती है और वो सिर्फ मुसलमान का सीना पहचानती है, वैसे ही पुलिस की कलम को भी आंख होती है और वो सिर्फ एफआईआर मुसलमान के नाम पर करती है, वरना बड़े बड़े वाकयात होते हैं जहां एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो जो पुलिस की आज गुंडागर्दी है कि मामूली दो घरों में अगर लड़ाई होती है, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज भी हो जाता है, दोनों पार्टी जाके पुलिस स्टेशन में बोलती है कि हमको हमारा मामला जो है वो खत्म हो गया, तब भी पुलिस उनको परेशान करती है। इसलिए क्योंकि सियासी नुमाइंदे का इस पर पुलिस डिपार्टमेंट पर दबदबा नहीं है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उनके जो पुलिस के दलाल वही हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं साथी निहाल अहमद साहब की तरह पुलिस पर दबदबा कायम करने की कोशिश करूंगी। देखो, पुलिस सिर्फ डरती है उससे जो कानून समझता है। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम करती है और हम उनको बता दें कि तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो और हम ये नहीं होने देंगे, तो पुलिस डर जाती है। कैसे? इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है शिवाजी पुतले पे जब हम लोगों ने धरना किया तो पुलिस ने इजाजत दी, क्योंकि हमने उनको मालूम था इनको कायदा समझता है, हम इनका धरना कैंसिल नहीं करवा सकते। जब हमने पुलिस को कहा कि हम हार पहनाने जाएंगे तो पुलिस हमको इनकार करती रही, तो मैं जाकर लड़ी और वो बोली किस कानून से तुम हमको शिवाजी के पुतले पे हार पहनाने की इजाजत नहीं देते। तो वो लोग डर गए और मजबूरन वही जहां आरएसएस के लोग खड़े थे, पुलिस वालों ने उनको डंडे से रोका और हमको जाने दिया, इस शहर के लोगों को जाने दिया, क्योंकि तुम्हारे पास कानून की समझ थी। कानून जिसको समझता है तो कानून तोड़ने वाला उससे डरता है कि इसको कानून समझता है। उस शहर में ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो इस शहर के दबदबे को वापस लाए, ताकि हमारे शहर के लोग जो पुलिस के जुल्म से गैर कानूनी तरीके से परेशान किए जाते हैं उसको बचाने की ताकत मुझ में है। मैंने एलएलबी किया है, मैं कानून जानती हूँ, मैंने एमबीए किया है, मैं बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती हूँ, सियासत मैंने मेरे वालिद से सीखी है और हिम्मत, बहादुरी ये मेरे खून में है। मैं निहाल अहमद की बेटी, आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ इस शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप मेरा साथ दें। आज नलपट्टी, घरपट्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, औरत जो है वो सबसे ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि औरत को आदमी जो कमाई लाता है ना, उससे घर भी चलाना रहता है, उससे बीमारी अगर कोई आ जाती है
तो हॉस्पिटल का दवा का खर्चा भी निकालना होता है। अगर शादी गली में कुछ हो तो दूसरे के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे तो माँ का दिल बोलता है मेरे बच्चे भी नए कपड़े पहनना चाहिए, तो वो उस चीज के लिए भी पैसे बचा के रखती है। कहीं अपनी रिश्तेदारी में शादी हो तो उस वक्त भी अपने बच्चों को वो अच्छे कपड़े पहनाए, ऐसा काम करती। तो ये घर पट्टी, नल पट्टी और पावर बिल जो इतने ज्यादा हो गए हैं जिससे लोगों का बजट बरहम हो गया है, तो ये पावर की जो मस्ती है उसको रोकने के लिए इनको कानून से इनको बताना पड़ेगा जिस कंपनी है कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, ज्यादा बिल ला रहे। इसलिए जरूरी है कि तालीम याफ्ता, समझदार और जो जानती हो कि कैसे अपने शहर को बचाया जाए, इस जज्बे के साथ खड़े हुए उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। मैंने अपने इलेक्शनी तस्वीर और मेरी जो इलेक्शन की जो मेरी सोच थी, मेरे आज़्म को मैंने आपके सामने रख दिया। मैं साथी निहाल अहमद की बेटी, उनके इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद औरत होके इतनी हिम्मत कर रही हूँ गुंडागर्दी के माहौल में कि मुझे इस बात का यकीन है कि मैं औरत हूँ, अकेली हूँ, लेकिन निहाली सोच और ये शहर मेरा साथ देगा। वो माँ बहनी जो घरों में बैठी हैं वो मेरी बात सुन रही हैं, वो ये बात को समझेंगी कि एक औरत होकर मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ तो औरत ने औरत का साथ देना चाहिए। इस शहर के बुजुर्गों ने और नौजवानों ने ये सोचना चाहिए कि मेरा साथ दे, मेरा हौसला बढ़ाए। मेरा निशान साइकिल है, वही साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे, और मेरा बटन नंबर जो मशीन में है साइकिल का वो 6 नंबर बटन है। 6 नंबर बटन दबाकर मालेगांव शहर से ये ऐसे फिरका परस्तों का छक्का छुड़ा दो, ये मैं आपको दरख्वास्त करती हूँ।